سکول رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر لیا جی مفتی راشد اقبال مصطفی صاحب نے، اور ان کے ساتھ سلمان ستار صاحب ثنا خواں بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور لیکن سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کے پاس میں بعد میں آؤں گا. ہم چاہتے ہیں پہلے ثنا خواں موجود ہیں ہمارے پاس، سلمان ستار، ان سے ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شکر گزار ہوں، آپ نے بہت خوبصورت ٹرانسمیشن میں سکون رمضان میں میری بھی اس میں شمولیت اختیار کی. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 اللہ. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹکے جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھکے جائیں گے. اللہ 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 اللہ. فمحمدنا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته. یہ محمد ہے اپنے مولا، اس نام سے اپنی ذوبقا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت کلام. مفتی راشد اقبال مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینہ ہے
تو تھوڑا سا روشنی ڈالیے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا. بحمد اللہ تعالی آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ناظرین سے محو گفتگو ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر ماہ سیام کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کسی نہ کسی صورت میں روزے فرض تھے. اور روزوں کی فرضیت کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ. اللہ رب العزت نے اسلام کے دامن میں بڑی بہاریں رکھی. سبحان اللہ. اسلام میں قرآن ہے اور قرآن میں رمضان. پھر رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر رمضان المبارک کا تذکرہ قرآن میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. سبحان اللہ. تو میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ قرآن میں رمضان ہے اور رمضان میں قرآن ہے، رمضان میں قرآن. سبحان اللہ. اور پھر رمضان المبارک میں کس قدر فیوضات ہیں، برکات ہیں، بالکل نزول قرآن. انوارات ہیں، تجلیات ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، سعادتیں ہیں، ماشاء اللہ. جو کسی اور مہینے کے ساتھ خاص نہیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نزول قرآن ہے، بالکل اور اللہ رب العزت نے اس کے دامن میں اتنی بہاریں رکھی ہیں نا. آپ خود اندازہ فرمائیے کہ 3 رمضان المبارک میں ایک نسبت بھی ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا یوم وصال بھی ہے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے اور جشن فتح مکہ بھی ہے. چونکہ مدینہ منورہ سے جو قافلہ روانہ ہوا 10 رمضان المبارک کو روانہ ہوا. پھر 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر اور پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے. بالکل. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین ام المومنین آپ کا یوم وصال بھی ہے. اور 19 رمضان المبارک سے 21 رمضان المبارک تک ایام شہادت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہے. آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، جشن نزول قرآن بھی ہے. اور آج کے روز جو ہے نا وہ دیکھیں نا تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے عالمی سطح پہ دن منایا جا رہا ہے. تو ان نسبتوں نے اس ماہ مقدس کو اور عظیم تر کر دیا. اور اس میں رحمت رحمان بھی ہے. اللہ اللہ. اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اس میں رحمت رحمان بھی ہے، بخشش کا سامان بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروان بھی ہے. اللہ رب العزت اس کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں، سعادتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے دنیا میں بھی. آمین آمین. بالکل اسی حوالے سے مفتی راشد اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کمالیہ کا رخ کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے نے مہنگے پھل کے حوالے سے ایک پیکج تیار کیا ہے. اسد راجپوت کا پیکج دیکھ لیتے ہیں، پھر اگین مفتی صاحب سے کنٹینیو کریں گے. جی. کمالیہ میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی منافع خور باز نائے فروٹ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، جس کے باعث روزہ داروں کے لیے پھل خریدنا امتحان بن گیا. مزدور طبقہ پھلوں کے ریٹ سن کر ہی چونک جاتا ہے، خریدنا تو دور کی بات ہے. اوپن مارکیٹ میں سیب 350 روپے فی کلو، کیلا 220 روپے، امرود 150 روپے کلو، کنو 220 روپے کلو اور خربوز 150، کھجور 480 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ فروٹ کی جو قیمتیں ہیں یہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے. ہمارا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو فروٹ کی قیمتیں ہیں ان کی لسٹ چیک کی جائے اور غریب عوام تاکہ آسانی سے لے سکے. جو قیمتیں رمضان سے پہلے بھی اب وہ ڈبل ہو چکی ہیں. ناقص معیاری فروٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کا روزہ افطاری اور بہت زیادہ مشکل ہو گیا گزر بسر کرنا. مہنگائی پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے، کچھ بھی غریبوں کی پہنچ ہر چیز دور ہو گئی ہے. حکومت وقت اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے.
शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं। मार्केट में हर दुकानदार ने अपना रेट लगाया हुआ है, जबकि प्राइस लिस्ट पर कीमत मार्केट के बरअक्स है। फ्रूट मंडी के रेट भी मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब फल फरोश दुकानदारों का कहना है कि आए रोज़ कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस काम ठप होकर रह गया। आला हुकाम बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि रोज़ादार तबका फलों को खरीद कर अफ्तारी के औकात में दस्तरख्वान की जीनत बना सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमालिया। फैसलाबाद का ही रुख कर लेते हैं। फैसलाबाद में अली हसन साबरी इफ्तार पार्टी के हवाले से एक पैकेज तैयार कर चुके हैं। उनका पैकेज मुलाहिजा करके फिर इंशाअल्लाह दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मरहूम शेर खान बलोच के इस साले सवाब के लिए एक अजीम शान अफ्तार दस्तरखान सजाया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस रूह परवर इज्तमा में रोजादारों ने मिल बैठकर रोजा इफ्तार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अफ्तार के इस बाबरकत मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रियासत अली खान बलोच के साहबजादे साहिल रियासत ने भी खसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था कि रमजानुल मुबारक में इस तरह के इज्तिमाअत न सिर्फ बाहमी मोहब्बत को फरोग देते हैं, बल्कि दीन इस्लाम की अखुवत और भाईचारे की तालीमात को भी उजागर करते हैं। भाई शेर मोहम्मद खान उन्होंने साहबजादगान अपने वालिदैन दे साले सवाब वास्ते पहले इफ्तार करेंगे थे। किस टाइम भाई शेर खान वफात पाई, उस बाद महफिल मिलाद साले सवाब वास्ते करा रहे। माशाअल्लाह आज उन्हें अफ्तारी का बड़ा खूब इंतजाम किया है। सारे लोग अफ्तारी कर रहे हैं, पिंड वाले बाहर तो लोग आए अफ्तारी करने वास्ते। असल में ये एक तसलसल है। हमारे बड़े जो थे वो अपने बड़ों के लिए साले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए हर साल ऐसी मतलब महफिल का इंतज़ाम करते थे और उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके साले सवाब के लिए अब हर साल हम कर रहे हैं। तो शरई लिहाज से भी ऐसी महफिलें होनी चाहिए। शरई एतबार से मिल के बैठना, प्यार मोहब्बत का एक दरस मिलता है इससे, और अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए ऐसी जो महफिलें हैं, ऐसे इंतज़ाम बहुत ज़रूरी हैं। तो ये स्पेशली हमारे जो भाई शेर मोहम्मद खान, भाई शबीर खान, इकबाल खान और हमारे जितने आबा व अजदाद जो हमें छोड़ के इस दुनिया फानी से चले गए, उनके साले सवाब के लिए ये इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ गाँव के भी बहुत ज़्यादा लोग शरीक हुए और ऐसी महफिल का इंतज़ाम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ये महीना हमें सब्र, बर्दाश्त और दूसरों के लिए इसार का दर्स देता है और ऐसे अफ्तार दस्तरखान इस पैगाम को आम करने का बेहतरीन जरिया हैं। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। जी, एक बार फिर खुशामदीद। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन मुफ्ती साहब वहाँ से मौजूद हैं। मुफ्ती राशिद इकबाल मुस्तफ़ी साहब डायरेक्टर हैं मिनाज एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के। अच्छा सर, अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि थोड़ी सी हम चाहेंगे ज़रूर रोशनी डालिए साहबियात के, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना और उनका किसका विसाल है और जिसने अपने का जश्न है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हम चाहेंगे कि मुख्तसर वक्त है हमारे पास, तो इस हवाले से ज़रूर बयान कीजिए। जी, बात का यहाँ से आगाज़ करते हैं इनके फ़ज़ाइल और शमाइल के हवाले से कि ये उन दिनों की बात है कि जिन दिनों मेरे आका करीम गार हिरा की खलवतों में मसरूफ़ ज़िक्र फ़िक्र और इबादत रहा करते थे। एक रोज़ सर शाम सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खाने पीने की चंद चीज़ें लेके ना मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना होती हैं सर शाम। और ये आज का दौर ने इमेजिन कीजिए, आज से 1450 साल पहले का ज़माना, लक दक सहरा होगा, जंगल होगा। ऐसे आलम में जिगर गुर्दे की बात है कि शाम के वक्त ये एक मरतबा नहीं हुआ, कई बार हुआ, बार बार हुआ। खाने पीने की चीज़ें लेके आका करीम की खिदमत में हाज़िर होती हैं। जबले नूर की चोटी पे गारे हिरा की खलवतों में जाके पहुँचती हैं तो रब कायनात फरमाता है जिब्रील लब्बैक या जलील कि खदीजतुल कुबरा अपने शोहर नामदार के लिए, मेरे महबूब के लिए खाने पीने की चंद चीज़ें लेकर हाज़िर होने वाली हैं बारगाह मुस्तफ़ा में। इससे पहले कि मेरा महबूब कलाम करे, वो सलाम करे, तो खुदा को खदीजा का सलाम कहना, सुभान अल्लाह, खुदा को खदीजा को खुदा का सलाम कहना, खदीजा को सैयदा खदीजतुल कुबरा को खुदा का सलाम कहना। मैं कहता हूँ कि कौन है इस रुए ज़मीन पर कि जिसकी तरफ खुदा का सलाम आया? ये हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये हज़रत
सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मा जान, यह हसनैन करीमैन की नानी जान है, जिनकी तरफ खुदा का सलाम आया और खुदा का पयाम आया। पयाम क्या है कि मेरे महबूब से कहो कि हज़रत खदीजतुल कुबरा से कह दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए जन्नत में महल तैयार किया है, कि जो मोतियों का महल है उसमें न शोर न उकताहट न बोरियत होगी। और आला हज़रत ने क्या खूब मंजूम कलाम में तर्जमानी की है कि मंजिलुन मन कसब ला नसब ला सखब, ऐसी कोशक की ज़ीनत पे लाखों सलाम। उनके बतन अनवर से वो शहजादी तशरीफ़ लाईं कि जिनका इसमें ग्रामी नामे नामी हज़रत सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चूँकि आपकी वालदा माजदा उम्मुल मोमिनीन मोमिनाए अव्वल भी हैं, मोकिनाए अव्वल भी हैं, मोहसिनाए अव्वल भी हैं, अतीकाए अव्वल भी हैं, अफीफ़ाए अव्वल भी हैं, रफ़ीकाए अव्वल भी हैं, और ज़ोजाए अव्वल भी हैं, खातून अव्वल भी हैं। ये खातून अव्वल का टाइटल किसी और के सर पे नहीं सजदा, ये सजता है तो सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा के सर पे सजता है। आप इस्लाम की पहली खातून है, खातून अव्वल। तो उन्हीं के बतन अनवर से शहजादी तशरीफ़ लाईं। आका करीम शब मेराज जन्नत में गए, जन्नत के कुल बूटे देखे, जन्नत की बहारें लूटी। एक फूल मेरे आका करीम ने जन्नत का सूंघा, उसकी खुशबू मेरे आका करीम के दिलो दिमाग में रच बस गई, और मेरे आका करीम की ख्वाहिश तमन्ना रही कि ता आके दुनिया में तशरीफ़ लाए कि उस फूल की फिर से एक मरतबा खुशबू सूंघूं। तो सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमतु ज़हरा आपके लख्त जिगर नूर नज़र आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाती हैं तो मेरे आका करीम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी से प्यार किया, लाड किया, तो वही जन्नत के उस फूल की जो खुशबू सुंघाई गई थी ना, तो वही आपके जिस्म अक़दस से खुशबू आ रही थी जी। तो हदीस का मफ़हूम यह है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशमुर राहियत मिन फातिमा ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका करीम जन्नत के उस फूल की सूंघने की जब भी तमन्ना दिल में पाते ना, तो सैयदा फातिमतु ज़हरा को सूंघ लिया करते थे। अब हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आप सैयदा फातिमतु ज़हरा को जन्नत का समरा कह लो या जन्नत को फातिमा का शजरा कह लो। रब की इज्जत की कसम, फातिमा कौनैन की सरताज है, अजमतों की आखिरी मेराज है। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। लोग ये कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, लोग ये कहते हैं कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का खून बड़ा रंगीन है। मैं कहता हूँ कि सैयदा फातिमतु ज़हरा का दूध बड़ा हसीन है। और तरबियत कैसे की कि पीसती थी खुद शहनशाहज़ादी, कोई चक्की की किस्मत तो देखे, लब पे कुरान की आयतें और गोद में है नबी के नवासे। इस अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत की। अल्लाह अकबर। और अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत मंजूम कलाम में आपकी बारगाह में मनकबत पेश की है जी। और कमाल कर दी, कलम तोड़ दिया अल्लामा ने। फारसी का कलाम है। आप कहते हैं कि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिनका तज़किरा सूरह आले इमरान में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़माने की औरतों पे उन्हें मुअज़्ज़ज़ कर दिया, और एक निस्बत की वजह से। अल्लामा कहते हैं मरियम अज यक निस्बत हज़रत ईसा अजीज़, अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। कहते हैं कि हज़रत सैयदा मरियम को ज़माने की औरतों पे इसलिए फजीलत अता की कि वह हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी। और आप कहते हैं जिसको रब्बे कायनात ने 3 निस्बतें अता की, उसकी अजमत का आलम क्या होगा, उसकी फजीलत का आलम क्या होगा। कि सैयदा ज़हरा को रब ने 3 निस्बतें और बड़ी अजीम निस्बतें अता की। पहली निस्बत क्या कि नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वली व आखिरी, कि आप नूर चश्म हैं, नूर नजर हैं। किसकी? रहमतल लिल आलमीन की। कौन रहमतल लिल आलमीन? इमाम अव्वली और आखिरी, जो अव्वली के भी इमाम है और आखिरी के भी इमाम। और आप दूसरी निस्बत बयान करते हैं बानुए ताजदारे हल अता मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। बनो हैं, जोजा हैं मोहतरमा। किसकी? जोजा मोहतरमा है मौला अली की। अकीदा देखिए अल्लामा इकबाल का, मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। और तीसरी निस्बत मादरे या मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे या काफिला सालारे इश्क, कि जब इश्क के काफिले चले अजल से अबद की तरफ, तो इश्क के काफिलों का सालार आजम हुसैन है और फातिमा हुसैन की माँ है। और इश्क की पुरकार, ये पुरकार लफ्ज होता है जो डैड्स को पुर करती है। तो इश्क की पुरकार का जो मरकजी नुक्ता है वो हुसैन है और फातिमा हुसैन की माँ है। अब ये 3 निस्बतें बयान करके अल्लामा इकबाल कहते हैं जरा जिगर थाम के बैठना। रिश्ताए आईने आत जंजीर पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा। आप कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, शरीयत मोहम्मदी के बालादस्ती को दिलो जान से कबूल करता हूँ। अगर शरीयत मोहम्मदी मेरे लिए
अगर शरीयत मोहम्मदी मेरे लिए पाबंदी आयद न करती तो मेरा जी ये चाहता है, मेरा ईमान ये कहता है, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बर खा के वो पाशीदा में, वरना मेरा जी चाहता है कि जिस तरह सैयदा फातिमा ज़हरा ने उम्मत की तरबियत के लिए हसन हुसैन पाल के पेश फरमा दिए ना, मेरा जी चाहता है लोग काबे की तरफ सजदे करें, मैं फातिमा की कब्र की तरफ सजदे करूं, और लोग काबे का तवाफ करें, मैं फातिमा की कब्र का तवाफ करूं। अल्लाहु अकबर। मगर कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, शरीयत मोहम्मदी की बालादस्ती को दिलो जान से कबूल करता हूं, और शरीयत जो है ना वो मेरे लिए पाबंदी आयद करती है, वरना सैयदा फातिमा ज़हरा सजावार है, हकदार है कि उनकी अजमतों के सामने उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हुए उनकी कब्र का तवाफ भी करूं, उनकी कब्र की तरफ मुंह करके सजदे। बिल्कुल नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिए।